If somebody tells me that Rama was in 1 lakh year, I will not believe it. I'll go strictly by archaeology. Uttar Pradesh and also Uttaranchal. Uttarakhand भी कहते हैं, Uttaranchal भी कहते हैं, Haryana, Delhi, up to Himachal, Delhi. This was known as Deva Bhumi, and that was the cradle of Hindu civilization. In between river Saraswati, Rishadwati, Ganga, Yamuna. So in Rigveda also there is a verse, Imam me Ganye Yamune Saraswati Shutudri Somam Sajata Parushnaya. In Devabhumi nothing untoward should happen. Tum Deva Nirmidam Desham Brahma Vartam Prachachate. It was known as Brahma Varta also, Brahma Desha also, and it was also known as Madhya Desha. मस्जिद के इस साइड में जो रामलला का जो ना एक इमेज था, वही पूजा होता था और डेली हजारों लोग आते थे और कभी पूजा बंद होता नहीं था, क्योंकि सवेरे से शाम तक जो ना बिल्कुल एक धारा प्रवाह था। आते हैं बंगाल से आते हैं, बिहार से आते हैं, साउथ इंडिया से नेपाल से आते हैं, जस्ट टू हैव ए दर्शन ऑफ रामलला। मुझे याद है क्योंकि रात भर जो ना कीर्तन चलता था, या जो ना इसमें जो ना लोग जो ना आते थे जिनको दर्शन के लिए मौका नहीं मिला, वो फिर जो ना पीछे के लाइन में होगा। तो ये एक ऐसी मंजर था देखने के लिए, क्योंकि लोग जो ना हमेशा आते रहते, पूजा कीर्तन ये सब चलते थे। ಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷನೂ ಅನಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಕೆಳಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. 1854ರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಬಾಬರ್ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಿಂದನೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಾಧು ಸಂತರ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಾದಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಕೆಳಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಮುಂದೆ 1948-49ವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಮಸೀದಿ ಇತ್ತ, ಮಂದಿರವಿತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿಷಯನೂ ಯಾರು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ 1976-77ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಕೆ ಮಹಮ್ಮೂದ್ ಅವರು. ಇವರದ್ದೇ ಏನು ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಇವತ್ತೇನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಂಥದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು, ನಿಜ ಏನಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳುವ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯನ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಕೆಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಪುರಾತತ್ವ ಉತ್ಖನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಏನ್ ಸಮರ್ಕಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಏನ್ ಬಾಬರ್ ಏನ್ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಥವಾ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಮಂದಿರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮೇಲೇನೆ ಮಸೀದಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು. ನಾನೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತದ್ದು ಅವ್ರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತು. ಅವತ್ತೇನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂದನೂ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟುದ್ದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ
ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾರಾಂಶ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ. ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಕೆಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ನಿಗೂಢತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅವರ ಹತ್ರನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳಿದೆ. हाँ सर, महमूद सर, आपको कार्यक्रम को स्वागत है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बहुत बड़ी एक क्वेश्चन है हमारी. खुद आप एक मुस्लिम हो, सही. दूसरी चीज है आपने पहली बार उधर मंदिर था बोल के आपने कोर्ट किया और उसके बाद इसी के ऊपर कोर्ट का वर्डिक्ट सब कुछ आ गया. तो क्या था सर, क्यों आप उस जमाने में वहां गए थे? आपका इंटरेस्ट क्या था? आप कहाँ, मतलब कैसा ये बन गया पूरा? मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था. देयर वाज नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट फॉर मी, बट यू नो दैट वाज पार्ट ऑफ आवर कोर्स बिकॉज आई वाज इन द स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी. Okay. In Archaeological Survey of India. So Professor B.B. Lal, he decided to excavate that place. वो excavate करना चाहता था. तो उन्होंने उसका पहले हस्तिनापुरा का excavation भी किया था, जो पांडवास का जो कैपिटल्स था उसका भी उन्होंने excavation किया था. तो and then he had come to certain conclusions also. बहुत अच्छा conclusion था. तो he was the former Director General of Archaeological Survey of India. तो उन्हीं के अंडर में हम लोगों ने, and then he resigned his post also and he went back to his study and the table. तो हम लोग उसी टीम में गए थे 76-77 में. तो जब जाते हैं जहां हम लोगों को एक्सकवेशन करना है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वी गो फॉर एन एक्सप्लोरेशन ऑल अराउंड इट. सारी जगह पे हम लोग एक्सप्लोर कर लेते. पहले एक्सप्लोर का मतलब यह है कि सरफेस में स्टडी करते हैं. एक्सकवेशन का मतलब है आप जमीन के नीचे जाएंगे. वी वेंट फॉर द एक्सप्लोरेशन. जो मस्जिद में के अंदर जाना चाह रहा था तो वो वहाँ एक पुलिस वाला था. उन्होंने कहा कि ये मस्जिद जो ना खोलते नहीं है हम लोग, इसको जो ना ताले में है. आउटसाइड में मंदिर था, मंदिर में पूजा चल रहा था और वो दिन रात पूजा चलते थे उस टाइम में. सर आप पहले 1977 आपने अभी बोला, आप गए प्रोफेसर इनके लाल के अंडर में गए. तो तब आप स्टूडेंट थे या आप इसके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में थे? नहीं, मैं अपना ये एमए कंप्लीट करने के बाद जो ना मुझे एडमिशन लेना था पीएचडी के लिए. तो उसी टाइम में कुछ कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस थे. तो मैं कम्युनिस्ट हिस्टोरियन से मेरा झगड़ा चलता था, स्पेशली विद प्रोफेसर इरफान हबीब. तो मार्क ज्यादा मेरा था लेकिन मुझे अपना हक नहीं दिया. मुझसे बहुत नंबर कम जिनको था उनको एडमिशन दे दिया पीएचडी में, स्कॉलरशिप पे उनको दे दिया जो मेरा हक था. किस यूनिवर्सिटी में सर? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में. अच्छा, आपको केरला के? यस. लेकिन पढ़ाई आपने अलीगढ़ में किया. अलीगढ़ में किया. हाँ, पूरा एजुकेशन आपके यूपी में? और नहीं, मेरा तो खैर तो जब तक मैं हाई स्कूल में था केरला में ही था, कैलिकट में. उसके बाद जो है मुझे दो तीन किताबें बहुत अच्छा लगा. वो दो किताबें नेहरू जी की किताबें थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसका एक का नाम है, एंड द सेकंड नेम इज दिस वन, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. नेहरू जी का अंग्रेजी जो है बहुत अच्छी है, बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन वो सब उस जमाने में आता नहीं था. बट दैट वाज ट्रांसलेटेड इनटू मलयालम, मातृभूमि ने ट्रांसलेट किया था. तो वो मैंने पढ़ा. तो मैं हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जो है ना मुझे दिलचस्पी लगा. तो नेहरू जी की वजह से आपको दिलचस्पी? यस, नेहरू जी के. एंड मैं उन लोगों में नहीं हूं जो नेहरू जी को कंडेम करते हैं. आजकल वो फैशन हो गया. तो मैं उन लोगों में नहीं हूं. एंड फॉर मी ही इज वन ऑफ द नेशनल बिल्डर्स ऑफ इंडिया. और फिर उसके बाद जो एक किताब था नालंदा के बारे में, वो नालंदा के बारे में भी, दैट वाज इन मलयालम. तो मैंने वो भी पढ़ा. पढ़ने के बाद जो है मुझे लगा कि अब आगे जो पढ़ाई करेंगे that should be somewhere in North India where most of these important historical events was enacted. तो वो कौन सी है? वो दिल्ली है या आगरा है या फतेहपुर सीकरी है. तो फिर जो मैंने सोचा कि उसके करीब में है इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी. तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला एंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो. फिर मैंने वही पढ़ाई किया
उसके बाद जो है ये पर्टिकुलर हादसा हुआ जो इरफान हबीब, आई वॉज डिस्क्रिमिनेटेड, इनजस्टिस हुआ मेरे साथ। तो उस जमाने में नोबडी कुड फाइट अगेंस्ट दम, इरफान हबीब। तो फिर मैंने छोड़ के जो ना आई वेंट टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वहाँ रिटर्न टेस्ट दिया, उसमें ये हो गया, सक्सेसफुल हो गया। एंड देन आई वेंट फॉर दिस वन, फॉर दिस आर्कियोलॉजिकल कोर्स, एंड इट वॉज पार्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल कोर्स एट दैट टाइम। तब आप जो बोल रहे चीफ कौन थे सर? लाल? Yes, it was Professor B.B. Lal. बीबी लाल? B.B. Lal, for this one, for the excavation only. अच्छा। The Director General was Dr. M.N. Deshpande, because Lal had, he voluntarily retired at the age of 1955. वो कोई नहीं करते थे उस जमाने में। So he took voluntary retirement, and then he went to the university. फर्स्ट ग्वालियर यूनिवर्सिटी एंड देन ही वाज इन शिमला। तो दोनों के जो है कंबाइंड कैपिटल थे इन द इनिशियल स्टेज। तो एक्सकवेशन जब किया, क्योंकि पहले जो ना बाइबल के बारे में काफी एक्सकवेशन हुआ है मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, इन सारी जगह पे। तो पहले जो ना बाइबल को भी हम लोग समझते थे ये बहुत सारे जो कहानियां होगी, लेकिन उसमें ये पता चला नहीं ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इसमें there are certain historical truths also in all these things, बाइबल का उसमें। तो प्रोफेसर लाल साहब ने सोचा कि हमारा भी जो रामायण है, महाभारत है, इसका भी जो ना क्यों एक्सकवेशन क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इसको भी जो ना हम लोग जो ना उस तरीके से देखा जाएगा। वी हैव टू सी, क्योंकि एन आर्कियोलॉजिस्ट इज वो रिलीजन के साथ नहीं है, उनको चाहिए साइंटिफिक सबूत चाहिए। Scientific, if there is historical truth, there is scientific truth, then only he will accept it. If somebody tells me that Rama was in 1 lakh year, I will not believe it. I'll go strictly by archaeology. If somebody says that there was Pushpaka Vimana, I will not believe it. No archaeologist would believe it. Okay. Or if there is Ganesh surgery, no archaeologist would believe it. It's all right for a religious person, that is all right. Or if they say that there was internet system and during the Mahabharata time, we will not believe it. We will go strictly by archaeological evidences, and that too scientific evidence. जो मीरठ है उत्तर प्रदेश में, and that was this area was known, that is उत्तर प्रदेश and also उत्तरांचल, उत्तराखंड भी कहते हैं, उत्तरांचल भी कहते हैं, हरियाणा, दिल्ली up to Himachal, Delhi. This was known as Devabhumi. Devabhumi. And that was the cradle of Hindu civilization. Okay. In between river Saraswati, Rishadwati, Ganga, Yamuna. Okay. So in Rigveda also there is a verse, Imam me Gange Yamune Saraswati Shututri Somam Sajata Parushnaya. But nowadays Saraswati is not there. No, it is completely dried up. Okay. But when satellite imageries are there, ISRO is doing a lot of work in order to find out that the course of the river also. Achha. So that was known as Devabhumi. Achha. In Devabhumi, nothing untoward should happen. Tum Deva Nirmidam Desham Brahmavartam Prachakshate. It was known as Brahmavarta also, Brahma Desha also, and it was also known as Madhya Desha. So nothing illegal thing, no injustice should take place. Tum Deva Nirmidam Desham Brahmavartam Prachakshate. उसके बाद आपने स्टार्ट किया बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का कैसा, आपको किसने बोला बाबरी मस्जिद जाना है, उसका नीचे क्या है देखना है? That was not only my decision, that was the decision of the Archaeological Survey of India. लाल साहब के अंडर में था, that was the decision of the Archaeological Survey of India. So it was not only me, there were 10 others also in the team members. जो हमारे जो this one Congress spokesperson, the present spokesperson जयराम रमेश जी, उनकी वाइफ जयश्री, she was our classmate, she was our batchmate, and she was also there. She was looking after the trench A. We will divide it trench A, B, C. She was looking after the trench A, and then there was a gap, then that is B, and then C. I was looking after trench C. So it was like that one. In between, this communist historian, what they said, when everything was published, Irfan Habib himself gave a statement that KK Mohammed had no association at all with Ayodhya excavation. And another professor,
that is Nadeem Rizvi. He said that I was not at all part of the excavation team. आपने 77 में गए उधर, सॉरी 76, Yeah. 76 और 77, See. तब तक वो कुछ ये नहीं था उधर। पिछले वहाँ 130 ईयर से कुछ इश्यूज तो चल रहा था, Issues चल रहा था, but कैसा था आप जैसा बाबरी मस्जिद जाके आपने देखा, पहला कैसा था? नहीं, जाके देखने के लिए मैं वही रहता था, जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट, बाबरी मस्जिद जो है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट देयर वाज अ स्मॉल इन मीन्स सराई, a small hotel you can say, and the entire team was staying there only, so there was no going, I mean there was no need of going there. इसको एक्सक्लेशन करना मतलब खुदाई करना, अच्छा, ये किसका प्लान था और कैसा स्टार्ट हुआ ये? अच्छा, ये एक्सकवेशन करने का जो ना, that was Professor Lal's decision. He did not want to rake up this issue of Ayodhya. He did not excavate for that one. He wanted to see what is the cultural sequence of Ayodhya. उसमें सबसे पहले कौन रहते थे, उसके बाद कल्चरल सीक्वेंस का मतलब ये है, कोई भी एक एरिया जैसे बेंगलुरु है, बेंगलुरु में सबसे पहले कौन रहते थे, उसके ऊपर कौन सी आबादी कौन सी था, उसके ऊपर कौन था, उसके ऊपर था, एंड उसके ऊपर अब तो खैर तो मॉडर्न एरिया हो गया। उसी तरीके से he had done the same thing in Hastinapura also. Okay. And the same way he wanted to see this one also. He had no connection with the controversial issue at that time, and it was not a major issue also at that time. तभी इतना पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं था, but there was one police person. Police person. उन्होंने हमसे कहा कि जो ना, नहीं आप अंदर जा नहीं सकते क्योंकि ये जो ना डिस्प्यूटेड है। कितना बड़ा था वो एरिया, बाबरी मस्जिद ही बोले तो कितना बड़ा था? ये मेरे ख्याल में उस टाइम में शायद 1 एकड़ समथिंग था, क्योंकि हाँ एकड़ में, क्योंकि अभी ये खैर तो ठीक से याद नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी इस तरीके से सोचा नहीं है उस टाइम में। 1 एकड़ में कुछ ऐसा कुछ होगा, पूरा द होल प्रीमाइसेस, और उसके सामने जो है लोगों ने बहुत सारे बिल्डिंग बना भी दिया था, एंड वी वर स्टेइंग इन वन ऑफ दो स्ट्रक्चर। मस्जिद के इस साइड में जो रामलला का जो ना एक इमेज था, वही पूजा होता था, और डेली हजारों लोग आते थे, हजारों लोग आते थे। अच्छा। और कभी पूजा बंद होता नहीं था, क्योंकि सवेरे से शाम तक जो ना बिल्कुल एक धारा प्रवाह था। अच्छा। कि लोग जो ना, क्योंकि आते हैं बंगाल से आते हैं, बिहार से आते हैं, साउथ इंडिया से नेपाल से आते हैं, जस्ट टू हैव ए दर्शन ऑफ रामलला। तो इसी के लिए लोग इतना ज्यादा बेचैन थे, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि रात भर जो ना कीर्तन चलता था, या जो ना इसमें जो ना लोग जो ना ये आते थे जिनको दर्शन के लिए मौका नहीं मिला, वो फिर जो ना पीछे के लाइन में होगा। तो ये एक ऐसी मंजर था देखने के लिए, क्योंकि लोग जो ना हमेशा आते रहते, पूजा कीर्तन ये सब चलते थे। ये कब, जब बाबरी मस्जिद था तभी होता था ऐसा? मैं उसी के टाइम की, जब हम लोग जो डिमोलिशन जो हुआ वो 92 में, हम लोग तो 1976 की मैं बात कर रहा हूँ। नमाज नहीं होता था वहां, नमाज नहीं होता था, लेकिन जो है ये पूजा अर्चना डेली हुआ करते थे। उसके ठीक उसके सामने, हाँ उसके सामने राइट साइड में। और जो नमाज के लिए जाने का दरवाजा था वो बंद था। वो पुलिस वाले हमेशा वही रहा करता था, वहां कोई नमाज वगैरह होता नहीं था। हाँ। वैसे भी वहां का जो पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है, इट्स ओनली हार्डली 5 to 6%। बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा, वो लोग भी बहुत सारे लोग जो ना, जो माला मंदिर के लिए माला बनाते थे, वो काम करते हैं। उनका जो ना उपजीवन मार्ग जो है ना, वो भी यही मंदिर था। मंदिर के ऊपर डिपेंड करता था। रामलला कपड़ा बनाते थे। वो जो ना, ये जो ना सैंडल, जो वुडन सैंडल है ना, वो लोग बनाने वाले भी मुस्लिम थे, ये 6% थे। तो सबका जो है ना, सारे के सारे लोग जो ना इसी मंदिर के ऊपर डिपेंड करते थे। सबसे ज्यादा पूजा हुआ करता था, क्योंकि एक हनुमान जी का मंदिर था, वही ज्यादा पूजा हुआ करता था। और हर एक जन वो पूजा करने के बाद ये वो लोग यहाँ आते थे। तो ಅದೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು, ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಅಲಿಗಢ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತ ನಂತರ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು
ಏನು ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಲಾಲ್ ಅವರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಏನಿದೆ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀರತ್ತು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರಾಂಚಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ದೇವಭೂಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ನದಿಗಳೇ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಸ್ವತ್ ನದಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಅಂತೇಳಿ, ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಲಾಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯೋಧ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಇದ್ರು, ಅದರ ನಂತರ ಯಾರು ವಲಸೆ ಬಂದ್ರು, ಆ ನಂತರ ಮಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ 13ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ. ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಂದೆ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ಸತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವತ್ತಿನ ಕಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಉತ್ಖನನ ಹಾಗೂ ಅದರ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಬತ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 76, 77ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆಗ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಅನ್ನೋದು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಅದರ ಬಲಗಡೆ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಾಮ್ಲಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಾಮ್ಲಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಡೀ ಭಾರತದಿಂದ ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಭಜನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಸೀದಿ ಒಳಗೆ ಆಗ ಯಾರು ನಮಾಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪೂಜಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪೂಜಾ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಹುಡುಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು, ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಅವರು ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಸರ್ ये सब तब का माहौल में चल रहा था, पूरा बाबरी मस्जिद था, लोग आते थे, पूजा पाठ चलता था. आप भी सामने एक सराय बोले थे, लॉस टाइप की इसमें थे, क्वार्टर्स टाइप में थे. तो अभी स्टार्ट हो रहा है एक्सुलेशन. तो ये किसने स्टार्ट किया सर? लाल साहब नहीं, लाल साहब नहीं, कैसा किया? मतलब कहाँ से? मतलब बाबरी मस्जिद इधर है, तो आप साइड से गए कैसे? नहीं, हम लोग जो ना एक तो क्योंकि उस टाइम में तो ये डिस्प्यूटेड था, तो वो अंदर खुदाई नहीं कर सकते थे. तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले जाके मस्जिद का स्टडी किया. तो मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे वो मंदिर का पिलर को रीयूज किया था. जो पहले वाले जो मंदिर थे उसका जो ना वो या तो गिर गया होगा या डिमोलिशन किया होगा, दोनों हो सकता है. तो उसी के पिलर को रीयूज करते हुए ये मस्जिद बनाया था. तो वो बहुत ही, क्योंकि हम लोग जो ना जब भी पढ़ते हैं हमारा कोर्स में जो ये रहता है कि ये मंदिर का है, ये मस्जिद का है या गिरजाघर का है या ये कितने साल पुराने हैं, ये हम लोग जो ना स्टाइलिस्टिक डेटिंग कहते हैं. उसको C14 डेटिंग की कोई जरूरत नहीं है. या तो स्टाइलिस्टिक डेटिंग कहते हैं. तो हम बता देंगे ये 12th सेंचुरी का है या ये जो ना 13th सेंचुरी का है या ये 10वीं शताब्दी का है. ये सब जो ना हम लोग जो ना वो कोर्स करने से हम लोग जो ना बता देते हैं. तो इट वॉज ए 12th सेंचुरी टेम्पल था. उसी को जो ना डिमोलिशन करके या गिर गया होगा उसको रीयूज करते हुए ये दोबारा मस्जिद बनाया था. सो दैट वाज वन एविडेंस. उसके बाद लाल साहब ने इसके पीछे दैट इज ऑन द वेस्टर्न साइड एंड ऑन द सदर्न साइड एक्सकेवेशन किया. तो जब एक्सकेवेशन करते हैं तो ये पिलर खड़े रखने के लिए ब्रिक प्लेटफॉर्म बनाते हैं. वो बोले ब्रिक बेस कहते हैं हम लोग जो ना, क्योंकि जमीन में जो ना इट शुड नॉट गो डाउन
इसीलिए फॉर दैट पर्पज इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एरिया दे हैड मेड ब्रिक बेसेस। वो ब्रिक बेसिस पहले दोनों जगह पे एक्सकेवेट किया और उससे फिर हम जो ना एसोसिएटेड फाइंड बताते हैं। एसोसिएटेड फाइंड का मतलब ये है कि वहीं से जो कुछ मिल रहा है ये किस चीज से एसोसिएटेड है। मंदिर है, अगर जो ना आपको जो ना ये अगर स्कल्पचर्स मिल गया तो स्कल्पचर्स तो कोई मस्जिद में कभी भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल एकदम हराम कहते हैं उसको इस्लामिक टर्म में, बिल्कुल इट इज प्रोहिबिटेड। यू कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लिविंग, आदमी का नहीं होना चाहिए, जानवर का होना नहीं चाहिए, ये सब चीजें एक मस्जिद में नहीं मिलेगा। सो वी गॉट ए नंबर ऑफ टेराकोटा थिंग्स ऑल्सो फ्रॉम देयर एंड टेराकोटा टेराकोटा का मतलब जो ना ये जो ना मिट्टी को जो ना ये करते हैं ना, आई मीन हीट अप करेंगे तो उससे जो ना टॉयज बनाते हैं। वो टॉयज में कई गॉड्स एंड गॉडेसेस का भी मिल गया। सो दैट मीन्स इट इज एसोसिएटेड विद द टेम्पल। तो बट दैट वाज नॉट एन इश्यू। 12th सेंचुरी का जो था, 12th सेंचुरी का 12th सेंचुरी वो किसका होगा? 12th सेंचुरी का है कि उसमें जो ना इट इज बिफोर द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स। तो उस मुस्लिम्स जो ना मोस्टली जो ना 1192 में दिल्ली आया, 1102, दैट इज 12th सेंचुरी। और उस टाइम में दिस मंदिर वाज स्टैंडिंग, हमारा ये मंदिर जो ना स्टैंड कर रहा था। एंड दैट वाज डिमोलिश आई मीन थ्रू आउट द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड का मतलब ये है 1192 से 1526 तक, ऑलमोस्ट 331 ईयर्स वो सल्तनत पीरियड कहते हैं। सुल्तान जो अफगानिस्तान से जो आए थे उन लोगों ने रूल किया था। मुगल्स जो ने एक अलग डायनास्टी है, वो लोग आए थे समरकंद बुखारा से, उस एरिया से जो आजकल का जो ना उज्बेकिस्तान कहते हैं वहीं से आए थे। तो दीज आर टू डिफरेंट ग्रुप्स। वो हम लोग जो है एक सल्तनत पीरियड कर देते या मुगल पीरियड कर देते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अफगान से कौन आया सर? अफगान से मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, आई मीन दिस वन इल्तुतमिश, ये सारे लोग जो ना अफगानिस्तान से आए थे। अच्छा, तो ये बहुत ही हार्श थे। दे वर वेरी हार्श। वो इस्लाम, रियल इस्लाम को जो ना वो बहुत ज्यादा जो ना आगे तक ले गया। वो जो इस्लाम, जैसे इस्लाम में टॉलरेंस के लिए, आई मीन जो ना जो जिनके साथ आप रहते हैं उनके साथ जो ना बहुत ही बढ़िया तरीके से रहना चाहिए। आप दूसरे को, ईश्वरों को आप जो ना यू कैन नॉट अब्यूज दम इवन। डिस्ट्रक्शन छोड़ दीजिए, डिस्ट्रक्शन बिल्कुल मना है, लेकिन अब्यूज भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ इस्लाम। एक कुरान में एक आयत है, एक वर्स है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह के अलावा अगर किसी और को और कोई जो ना इबादत करते हैं तो उनका खुदा को आप जो ना किसी भी तरीके से गलत नहीं कहना चाहिए। ये है स्ट्रिक्ट इस्लाम। लेकिन ये जो लोग आए हैं अफगानिस्तान से जो आए वो ट्राइबल पीपल थे। तो उन लोगों ने जो ना बिल्कुल इस्लाम को जो ना बिल्कुल तोड़ना, खत्म करना, जो ना मंदिरों को तोड़ना और लोगों को मार काट करना। आजकल भी जो अफगानिस्तान पे हालत जो ना इतने ज्यादा डेवलपमेंट हुआ उसके बाद भी अफगानिस्तान की जो ना हालत वही है। आजकल भी मार काट चल रही है, लेडीज के साथ जो क्या क्या कर रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी क्लियर एविडेंस फॉर अस। तो मुगल्स का क्या बोलते हैं आपने? मुगल्स उतना कट्टरपन नहीं थे। अच्छा, मुगल्स उतना कट्टरपन नहीं थे, लेकिन आजकल हम जो देखते हैं ना वो दोनों के एक साथ करने के लिए कोशिश करते हैं। मुगल उतना कट्टरपंथी नहीं थे। ये उज्बेकिस्तान थे, ये मंगोल्स थे, रेशियली ये मंगोल्स है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इस एरिया। दूसरा जो है ना वो दूसरे जो रेस है, जो हम लोग जो ना वो पहले जो कहते थे वो वाला अफगानिस्तान से जो आते वो बहुत ज्यादा कट्टरपंथ हो जाते हैं। तो वो 11th सेंचुरी में आए कि 10th सेंचुरी में आए सर? कौन सी? अफगान से जो आए वो अटैक करने के लिए इवन 8th सेंचुरी में भी आए थे, मोहम्मद कासिम जो आए थे। लेकिन उसमें जो ना कोई ज्यादा जो ना जीत नहीं पाए। तो सिंध में जो सिंध का पोर्शन है वही अटैक किया था, लेकिन वो फैला नहीं पाया। फिर मोहम्मद गजनी आए तो उन्होंने कुछ एरिया पकड़ कॉन्कर किया,
लूट लिया, जैसे सोमनाथ मंदिर उन्होंने लूटा था, मारकाट किया, बाहर चले गए। कितना में सर ये दैट वाज 1000 में, 1000 AD में ये सब हुआ। 11th सेंचुरी कहते हैं हम लोग, जो 10,000 होगा, 1000 होगा तो 11th सेंचुरी कहते हैं। वो मारा पीटा, कॉन्कर किया, लूटा, तोड़ा सब कुछ, फिर वो वापस चले गया। लेकिन परमानेंटली जो आए हैं वो मोहम्मद गौरी के साथ आए, दैट इज इन 1192 में आया। और उसके बाद जो ना फिर जो ना इन लोग जो ना कॉन्कर करते हुए गए, लेकिन उसमें भी जो ना यहाँ जो ना राम जन्मभूमि के एरिया में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, वहां उस टाइम में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। वो तो उनका जो ना मेन जो एरिया था, दिल्ली था, यूपी था, एंड बनारस का एरिया में जो ना तोड़ता किया है उन लोगों ने, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक है, बाकी जो ना इल्तुतमिश है, इन लोगों ने वो मध्य प्रदेश के कुछ जो ना नॉर्थर्न मध्य प्रदेश के कुछ एरिया उन लोगों ने ये इसी तरीके से पकड़ लिया था। बट दैट डिड नॉट अफेक्ट आवर एरिया, दैट इज अयोध्या के एरिया में वो इफेक्ट नहीं हुआ। अयोध्या का इफेक्ट जो हुआ है वो बाबर के पीरियड में हुआ। अच्छा, तो ये तो आप बोलते 13th सेंचुरी के बाद